Hello, my dear friends. This is Ankita Kishore here, and today my lecture topic is safe disposal of the pharmaceutical dosage forms. As we know that it is a very important topic because in current time in India there is no proper program is here to dispose the drug that are we are holding in our homes, that is unused, that is expired. So it is very necessary and very such a necessary topic that we need to aware the people about this, and we also take care all the guidelines that are approved by the FDA to follow the disposal of the pharmaceutical dosage forms. So in the index part, my presentation today is containing the introduction, how pharmaceutical dosage forms should be disposed, and the references. So in the introduction part, that what is safe. So I am explaining here the safe in terms of the pharmaceutical dosage forms disposal. So here, when we are disposing the pharmaceutical dosage forms, so they should be safe enough that they should not interact with the water as well as with the soil content of our environment. So in the disposal part, that disposal means to get rid of. तो हमारे घरों में जो भी हमारी medications हैं that are unused, that are expired, so हमें उन्हें इस तरीके से dispose of करना है कि वो किसी भी तरीके से हमारी living non living things को किसी भी तरीके से कोई भी harmful effect ना पहुंचाएं, और and because these harmful effect directly or indirectly reaching to us ultimately. So what is the meaning of pharmaceutical dosage forms here? Dosage forms, we know that tablet, capsules, syrups, many dosage forms are there in current time. And what is the pharmaceutical means in terms of dosage form? That these tablet, capsules, syrups, all these having one API, that is active pharmaceutical ingredient, that is responsible for producing the therapeutic effect inside our body. So this is the basic introduction part. So now the main topic is how pharmaceutical dosage form should be disposed. So this is a very hot topic nowadays because it will be a great harm to the environment and all the living organisms residing in it if we dispose the dosage form carelessly. तो इन करंट टाइम होता क्या है, हमारे घरों में जो भी मेडिकेशंस है जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, भले वो एक्सपायर्ड हो या ना हो, बाय चांस डॉक्टर्स ने, फिजिशियन ने हमको प्रिस्क्राइब किया 5 डेज का डोज, हमने 3 डेज का या 4 डेज का खा के छोड़ दिया, हम ठीक हो गए। देन उसके बाद जो भी हमारे अनयूज्ड मेडिकेशंस पड़ी होती हैं वो हम कई बार क्या करते हैं, सीधे ले जाके डिस्कार्ड कर देते हैं इन अवर डस्टबिन। दूसरी चीज़ कि अगर वो एक्सपायर्ड हैं तो भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। हमें डिस्पोज ऑफ करना भी इसलिए ज़रूरी है कि अगर वो हमारे घरों में रहेंगी तो हमारे घर में जो भी चिल्ड्रंस हैं वो कई बार एक्सीडेंटली उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, या फिर जो भी अदर पर्सन है वो भी बाई मिस्टेक इसको ले सकते हैं, जिससे कि उसमें कोई भी एडवर्स रिएक्शंस, एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। सो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए USFDA, that is United States Food Drug Administration, that is a regularity authority, has made some guidelines regarding the disposal of medication. So in guidelines को हमें जानना है, we should be aware about these guidelines and also make aware others also regarding the disposal of dosage forms. So there, the next point is how to proper disposal of the unused, unwanted or expired medicine. So old medicine, unused medicine, वो हो सकती हैं जो कि हमारे घरों में पहले से प्रेजेंट हैं, हम उसको अब यूज़ नहीं कर रहे हैं, और अनवांटेड जो कि हमारा कोर्स खत्म हो चुका है लेकिन हम उसको आगे यूज़ नहीं करने वाले, एक्सपायर्ड जो कि एक्सपायर्ड हो गई है, जिनकी एक्सपायरी डेट पास आउट हो चुकी है। तो ये सारी ही चीज़ें हम कैसे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, इसके लिए हमारे USFDA ने कुछ गाइडलाइंस बनाए हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन गाइडलाइंस को जानें। तो टुडे आई एम डिस्कसिंग द गाइडलाइंस हियर दैट USFDA हैज़ बीन अप्रूव्ड। तो पहली जो गाइडलाइन है इनकी, दैट इज ड्रग टेक बैक प्रोग्राम्स। तो जैसा कि नाम से इससे हमें क्लियर है, ड्रग टेक बैक प्रोग्राम्स मीन्स जो हमारे घरों में जो भी हमारी अनयूज्ड एक्सपायर्ड मेडिकेशंस हैं हम उनको लौटा के कहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने दो हमें लोकेशंस बताई हैं, दे हैव प्रोवाइडेड अस 2 ऑप्शंस एंड दीज 2 ऑप्शंस आर अंडर द गवर्नमेंटल कंट्रोल, कि अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे सो दे कैन मेक द परमानेंट कलेक्शन लोकेशन एंड साइट्स। ये परमानेंट कलेक्शन लोकेशन साइट्स क्या हो सकती है, that can be a pharmacy, that can be a hospital, and that can also be a clinical pharmacies.
तो इन परमानेंट कलेक्शन लोकेशन एंड साइट्स पे हम जाके हमारे घरों में जो भी इस तरीके की मेडिकेशंस हैं हम उनको वापस कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन देयर दैट पीरियोडिक इवेंट्स में क्या कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो हमारी कुछ इस तरीके की कैंपिंग जो है अरेंज करा सकती है कि जो भी प्रोफेशनल्स हैं वो हमारे लोकेलिटी में आके कुछ टाइम इंटरवल के बाद आ सकते हैं, लाइक 15 days विद इन अ मंथ। they can come and can arrange one camp here in our locality, जिससे कि हम अपने घरों में जितनी भी इस टाइप की मेडिकेशंस है उनको जाके वहां पे ले जा सके। तो उनको ड्रग देने के बाद ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, दे आर द प्रोफेशनल, वो जानते हैं कि इसको कैसे डिस्कार्ड करना है। बिकॉज इन इंडिया लेकिन ये प्रॉब्लम है कि देयर इज नो ड्रग टेक बैक प्रोग्राम्स इज देयर, तो जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। हम अवेयर नहीं है, हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अवेयर नहीं है इस बारे में कि किस तरीके से इन मेडिकेशंस को जो है डिस्पोज करना है। तो इंडिया में ये बहुत ज़रूरी है कि जो डिस्पोजल है मेडिकेशंस का प्रॉपर, उनके लिए हमें खुद भी अवेयर होना है, दूसरों को भी अवेयर करना है। दूसरी जो गाइडलाइन हमारे आते हैं डिस्पोजल ऑफ मेडिसिन एट होम, तो जब व्हेन वी आर नॉट हैविंग एनी ड्रग टेक बैक प्रोग्राम्स, तो हमें अल्टीमेटली जो मेडिसिन हैं वो हमें अपने घर पे ही डिस्पोज करनी पड़ती है। तो इस टाइप के लिए भी जो एफडीए है उसने हमारे लिए गाइडलाइंस बना के रखी हैं दैट व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्पोज द मेडिसिन एट होम, तो उस टाइम पे हमें किस टाइप के प्रोसीजर्स या स्टेप्स को फॉलो करना है। तो इसके अंडर में एफडीए ने दो लिस्ट बनाई है मेडिसिन की। वन इज नोन एज द फ्लशिंग मेडिसिन एंड अदर इज द नॉन फ्लशिंग मेडिसिन। एज द नेम इज इंडिकेटेड इन द फर्स्ट टाइप फ्लशिंग मेडिसिन दैट दीज आर द टाइप ऑफ मेडिसिन जिनको हम फ्लश आउट कर सकते हैं इन अवर टॉयलेट्स। सो यहाँ पे फ्लशिंग मेडिसिन क्या हो सकती हैं? दे कैन बी नार्कोटिक, ओपियोइड। ये नार्कोटिक और ओपियोइड ऐसी मेडिकेशन है जो कि हैबिट फॉर्मिंग होती हैं, जिससे कि कोई भी पर्सन है जो एडिक्टिव हो सकता है उसका। तो हमारे घरों में ऐसी कोई भी अनयूज्ड मेडिकेशंस हमें रिटेन करके रखना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इन केस अगर कोई भी चिल्ड्रन ने उसको एक्सीडेंटली एडमिनिस्टर कर लिया या फिर घर के किसी एडल्ट पर्सन ने कुछ ऐसे भी मिस यूज उसका कर लिया, तो ये हमारे लिए बहुत बुरा होगा। सो नार्कोटिक एंड ओपियोइड्स दैट इज कम अंडर द फ्लशिंग मेडिसिन, इनको हम इजिली फ्लश आउट कर सकते हैं, बट नॉट द एंटीबायोटिक्स। यहाँ पे हमें स्पेशली याद रखना है कि हमें एंटीबायोटिक्स को कभी भी फ्लश आउट नहीं करना है। व्हाट इज द रीजन हेयर कि जब भी हम एंटीबायोटिक्स को फ्लश आउट करते हैं तो ये हमारे वाटर के कांटेक्ट में आता है, और जब ये वाटर हमारा जाता है सॉइल के कांटेक्ट में, एनवायरनमेंट में जाता है, तो वहाँ पे वेराइटीज ऑफ माइक्रोब्स वहाँ पे हमारे प्रेजेंट है। तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ दीज वेराइटीज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये क्या करते हैं, ये हमारे माइक्रोब्स हैं, ये एक रेसिस्टेंस जो है प्रोड्यूस कर लेते हैं अपने अंदर। तो प्रॉब्लम कब आती है हमें कि इन माइक्रोब से इन फ्यूचर हमें कोई भी किसी भी टाइप की डिसीज होती है, तो अगर हम फिर आगे कोई एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो ये एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी में काम नहीं करती हैं। तो इसीलिए एंटीबायोटिक्स का जो डिस्पोजल है बहुत ही हमें केयरफुली करना है, इनको हमें बिल्कुल भी वाटर में फ्लश आउट नहीं करना है। अब बात आती है कि ये फ्लशिंग मेडिसिन कैसे हमें पता पड़ेंगे। तो ये जो फ्लशिंग मेडिसिन है इनके लिए एक लिस्ट अवेलेबल है हमारे पास, जो कि हमें इजिली एफडीए की वेबसाइट पे मिल सकती है। सेकेंड आती है कैटेगरी हमारी नॉन फ्लशिंग मेडिसिन की। व्हाट आर दीज नॉन फ्लशिंग मेडिसिन? कि उस एफडीए ने जो लिस्ट अप्रूव की है फ्लशिंग मेडिसिन के लिए, उसके अलावा जितनी भी हमारे पास ड्रग्स हैं वो आती हैं हमारी अंडर नॉन फ्लशिंग मेडिसिन। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि अगर हम इसमें कह रहे हैं डिस्पोजिंग द मेडिसिन इन द हाउस होल्ड ट्रैश, तो हम ये जो नॉन फ्लशिंग मेडिसिन है हम इनको हाउस होल्ड ट्रैश में डाल सकते हैं, लेकिन अभी हम वही बात कर रहे हैं कि हमें डंप नहीं करना है उसको अपने डस्टबिन में। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम डस्टबिन में उसको डंप करने जा रहे हैं, सो देयर आर सर्टेन स्टेप्स आर देयर जिसके थ्रू हम इसको डंप कर सकते हैं। तो क्या वो स्टेप्स हो सकते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं। लाइक देयर she is a female that having some medications, but she wants to get rid of these medications. So there one question is that आर वी हैविंग द ड्रग डिस्पोजल ऑप्शंस? अगर हमारे पास कोई भी ड्रग डिस्पोजल ऑप्शंस प्रेजेंट है तो हम उनके थ्रू क्या कर सकते हैं, इन मेडिसिन को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। नाउ यहाँ हम अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं, डू यू हैव अ ड्रग टेक बैक ऑप्शन रेडीली अवेलेबल? इफ वी आर हैविंग दिस ड्रग टेक बैक ऑप्शंस, तो हमारे यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं इन ऑप्शंस को सर्च करने के लिए। वन इज द डीईए वेबसाइट। डीईए वेबसाइट क्या होती है, हमारी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन वेबसाइट होती है, जो कि हमें ऐसे जो भी हमारे सेंटर्स होते हैं, जो भी हमारे इस टाइप के फार्मेसीज हैं जो कि ड्रग टेक बैक ऑप्शन अवेलेबल है जिनके पास, हम उनके पास जा सकते हैं। तो अगर ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, इफ
it is yes, then we can take easily our medication to these drug take back location. और ये हमें तुरंत ही करना चाहिए with the FDA फ्लश लिस्ट टाइप की ड्रग्स के साथ. अगर हमें यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है तो हमें क्या करना है, तो हमें FDA की वेबसाइट पर चेक करना है, FDA फ्लश लिस्ट निकालनी है, उस फ्लश लिस्ट में चेक करना है दैट इफ अवर मेडिकेशन is coming under this FDA flush list, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, we can immediately flush our medicine in the toilet. And what we have to do with this container, that we have to scratch out all the personal information on the bottle and recycle through it, throw it away. Now if our medicine is not under the FDA flush list, then what we have to do, so there certain procedures are there that अगर हमारी ड्रग जो है FDA लिस्ट में नहीं आती है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, we can mix these medicines with an unpalatable substances. क्या हो सकते हैं ये unpalatable substances like dirt, cat litter और used coffee grounds. तो इस mixture को हम आगे क्या कर सकते हैं, this mixture can be placed in a container such as a sealed plastic bag. Then this sealed plastic bag along with this mixture, we can throw it the container in our household trash. We can throw it directly in our dustbins. But what we have to do with the containers here, we have to stretch out all the personal information on the prescription label of our empty pill bottle or empty medicine packaging to make it unreadable, then dispose the container. Means in जो भी हमारे पास containers हैं, if there is any personal information on it we have mentioned here, so सबसे पहले हमें उनके क्या करना है, unreadable बनाना है, we can scratch out of this, then this container हम इन containers को हम भेज सकते हैं recycling के लिए. Now थर्ड गाइडलाइन इज देयर दैट डिस्पोजिंग ऑफ द फेंटेनिल पैचेस. तो बात आती है कि ये फेंटेनिल है क्या. तो ये जो फेंटेनिल है, दिस इज द पावरफुल सिंथेटिक ओपियोइड एनाल्जेसिक. ये ओपियोइड एनाल्जेसिक है जो कि बहुत ही ज्यादा हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है. तो ये फेंटेनिल पैचेस से बहुत सारे केसेस भी आए हैं जिसमें कि कई चिल्ड्रंस ने इसको एक्सीडेंटली यूज कर लिया था और यूज करने के बाद उनमें से कई क्या हुए, हॉस्पिटल्स पहुंच गए और कुछ ऐसे थे जिनकी की डेथ भी हो गई. तो इसीलिए इसके लिए एक डिफरेंट गाइडलाइन बना दी गई. और इनका हमें करना क्या होता है इन फेंटेनिल पैचेस का, दैट वी हैव टू फ्लश्ड यूज्ड और लेफ्ट ओवर बोथ द पैचेस. चाहे हमने उसे यूज किया हो, चाहे हमें आगे फर्दर उसको यूज अगर नहीं करना है तो हम उसे घर में नहीं रख सकते. दीज आर कमिंग अंडर द फ्लश लिस्ट और हमें इनको तुरंत फ्लश करना है. फोर्थ गाइडलाइन यहाँ पे है डिस्पोजिंग ऑफ द इनहेलर प्रोडक्ट. इनहेलर प्रोडक्ट में हमारे क्या आते हैं, जो कि एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं जो कि हमारे पम्प्स यूज करते हैं, जिसमें जिनको डोसेस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, एरोसोल. तो इन एरोसोल्स में प्रोपेलेंट्स होते हैं जो कि प्रोपेलेंट्स हमारे एक्सप्लोजिव होते हैं नेचर में. तो अगर वो किसी भी हमारे फायर या हमारे किसी भी इंसिनरेटर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो एक्सप्लोड हो सकते हैं. इसीलिए हमें ये बहुत ही स्पेशली ध्यान रखना है कि इन इनहेलर प्रोडक्ट्स को हमें किसी भी तरीके से इस तरीके से केयरलेसली डिस्पोज ऑफ नहीं करना है. We have to follow the local regulations and laws. We can contact our trash and recycling facility. तो इनको भी हमें केयरफुली रिसाइकलिंग फैसिलिटी को प्रोवाइड करना है, हमको उनको देना है. फिफ्थ गाइडलाइन आती है हमारी फ्लशिंग ड्रग्स एंड द वाटर सप्लाई. क्वेश्चन ये आता है कि जब हम कह रहे हैं कि हमें सेफली डिस्पोज करना है अपनी मेडिसिन को, बट दूसरी चीज हम कह रहे हैं वी कैन फ्लश सम मेडिसिन इन द वाटर. तो यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि ये जो फ्लशिंग ड्रग्स हैं जब ये वाटर सप्लाई के कांटेक्ट में आती हैं तो क्या ये उसके साथ इंट्रैक्शन नहीं करती हैं, क्या ये वहाँ पे कोई टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं कर सकती हैं. तो इसके लिए जो है हमारे FDA और US एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, इस पर रिसर्चेस की. देन दे हैव फाउंड कि जो भी इंट्रैक्शंस हैं वो इतने ज़्यादा हमारे हार्मफुल नहीं है भी तो बहुत नेग्लिजिबल है, अदरवाइज है ही नहीं. तो इस तरीके से ये सारे गाइडलाइंस जो है FDA ने पूरे रिसर्च के साथ, पूरे प्रोटेक्शन के साथ हमें अप्रूव करके दिए हैं. एंड वी शुड बी अवेयर अबाउट इट एंड ऑल्सो मेक अवेयर अबाउट इट, बिकॉज इंडिया में यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि हमारे पास कोई भी ड्रग टेक बैक प्रोग्राम नहीं है, जिससे कि हम हमेशा अपने जो भी मेडिसिन है उसको डंप करते हैं डस्टबिन में. और जो भी हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द डिस्पोजल ऑफ दीज डोजेस फॉर्म. तो हमें जो है, अगर हमारे पास ड्रग टेक बैक ऑप्शन नहीं है तो ये हमारे पास अदर जितने भी ऑप्शंस हैं वी शुड फॉलो देम. हमें उनकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए, हमें उसकी पूरी नॉलेज लेके हम उसकी वेबसाइट से सारी फ्लैश लिस्ट निकाल सकते हैं और हम उनको फॉलो करना चाहिए. सो दिस इज टुडे माय लेक्चर इज दिस. एंड अगर आप इसको अपने लिए इन्फॉर्मेटिव पाते हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. और यू कैन ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो ये आपके पास इजिली रीच हो सके. सो दिस इज द रेफरेंस एंड थैंक यू फ्रेंड्स.